And the most important at the end, do's and don'ts while going through this process, because sometimes we are not aware what exactly we are doing it, and how it's going to be get effect to the domain. NBA accreditation, what, why, when, and how. It's very important. So what is accreditation? It assures a program quality. It only gives the assurance of the program quality, because it is not going to give you any kind of award or a medal. It is not going to investigate your system, that what you are doing good and what you are doing bad. It is not even a regulatory process, that is a AICT and UGC go for the regulatory process, not the NBA or NAC. It is not even an audit process. Although you are going for this process, you have to have your internal audit. We call it as academic audit. So academic audit is another body, but NBA is not an audit that they are going to see your accounts, they are going to see your many other things. It's not like this. Accreditation is not even a ranking system. For that also, the government of India already have initiated NIRF. And of course, JCRC is in the part of that. They also got a rank last year, and last to last year I had to see on the website of NIRF, that is National Institution Ranking Framework. So this point should be clear enough that NBA accreditation is only giving you the assurance of the quality of your programs which you are running for the today's learner. Now, so NBA's quality grading is coming in two parts. Suppose the team comes to your institution after you submitted your complete self-appraisal report. We call it as SAR. For the NAC, we call it as SSR. For the NBA, we call it as SAR. The complete documentation uploaded on an NBA portal that is called SAR before the team visits. When the team comprising of 3 experts, including one chairman, which can be the vice chancellor or maybe director of national institution or a central university, they do visit, they do match what you have submitted in SAR and what exactly happening in your campus in respect to all parameters, including infra, including a teaching learning, including a placement, including a hostel facilities, including the all other IT infrastructure. What you have submitted, if it is there in force, you may get out of 1000 between 750 to 1000 marks. If you are going to achieve this 750 and above, you are going to be get accredited for minimum 6 years. Yes, for during next 6 years for that particular department for which you got an NBA accord, you can go for the long duration autonomous status from the AICTE. Even if you have a more than 50% of NBA approved programs in your campus, you have different types of opportunities and subsidies, or you can say the grants from the government of India through AICTE, through UGC and many other departments, because they do give benefit, they give the privilege. Those are the having 6 years accredited minimum 50% of their eligible programs. If you could sometimes miss the train to could not reach to that level of 750 and you stay in between 650 to 750 or 749, you are going to get again accreditation, but it is going for 3 years. That 3 years means we wish that within next 3 years period, you must make yourself that level achievable, that you can apply again after the 3 years period, or maybe a 2.5 years of period, because 6 months is the process period. We do apply at least 6 months prior to that renewals date. So you can going to be achieve that goal again. But if in any case, any institution's department could not fulfill the criteria which they are made for NBA and they applied for NBA through SAR, they are not going to get accredited because their score is less than 650. So areas which are going to be covered under the self-appraisal reports is the program criteria. What is the program criteria? The program criteria is nothing but the curricula. The curricula, the department which is running. Now I'll tell you the two things. NBA accreditations comes under the 2-tier system, tier 1 and tier 2. Tier 1 institutions are the stand-alone institutions, the autonomous institutions or institutions like JCRC, which they have their own degree conferring power. They have their own degree conferring power. So in that scenario, you have to have the syllabi revision also with you. You have the board of studies with you. You will be doing the gap analysis of the curricula time to time, and you are inserting the new topics and you are deleting some absolute topics from your curricula to give you the
latest curriculum to be taught to your learners. Those are coming to you. The tier 2 institutions are the institutions, those are affiliated under some universities. Suppose in your Jaipur, there are good number of institutions. Those do not have their own autonomous status. They comes under RTU. RTU is the Rajasthan Technical University. So when it is RTU, then institution is known as tier 2 institution because of their certain marks are not going to be graded them, and they get the exemption of these marks because they do not have in their hand the evaluation system. They don't have the question paper setting system. They don't have the curriculum even has to be come from the RTU, which may be the model curriculum or which may be the curriculum given by AICTE. So that is the program. But here in the case of JECRC, the program criteria also do applicable because you fall in tier 1 institution. The program educational objectives is called a PEO. The graduate profile is another term which we are going to use, and program outcomes which we are going to use this term. You should be aware about this term because I'm going to cover up the all terms and giving a definition and giving examples. Assessment part and evaluation part. I'm sure that you must be all you are senior. You must be aware about more than me about this NBA, but still you want to make a note. It's a good to be have a pad or pen with you because sometimes you will get something new and which has to be make a note of it. Although you are a senior professors and senior people must be visiting many times some institution for NBA accreditation evaluation also. So the parameters as per the SCR is the very first beginning of your SCR is with the vision and mission of the department. Here I would like to make it clear. The very first page should carry the vision of the university. The JECRC vision is applicable to whole university itself. Then what is the JECRC mission? That can be divided in 4 parts like M1, M2, M3 and M4. These all missions has to be get mapped, or this vision has to be get umbrella for all the departments. Those are going to create their self vision and mission as per the AICTE or NBA mode. Why this is so? Because the vision of the university is going to give you the holistic vision. What exactly for next 10 years the university is planned for. What is the mandate of a university, not the department. But being a department like a department of electronics and communication or maybe department of pharmacy, you must be having your individual vision, which is nothing but under the umbrella of the university vision. So it should be matchable and mappable with that. And you have the department mission as well as, because if you do not have the department mission, you cannot go for the program educational objectives. What is this program educational objectives? These objectives are the broad statements and it is going to be individual program wise. Like in one, your engineering wing, you must be having a 6 or 7 branches, like a civil, electrical, mechanical, IT and electronics. Each branch, as they have the independent vision and mission, which is going to be highlighted in that HOD's room. Similarly, they have their program educational objectives. If their program educational objectives are not there, there is no fun of running this kind of program in this country. So they should have their program objectives. So these are not more than 3. I mean to say 3 statements, PEO1, PEO2 or PEO3. It should not be more than that. If it is going to be more than that, then it is going to be create, sometimes confusion for you and to be difficult to justify before the board, before the SCR documentation. Now I'll come to the program outcomes. Program outcomes are already has been decided, drafted and published by AICTE, UGC as well as NAAC or NBA. These are the 12. PO1, PO2, PO3. I'll show you the list in the next slides. So these program objectives are as per the Indian need, as per the need of the today's call. So these outcome statements as described by student-centric form. So we have to match our individual courses. The next part is course outcomes. So individual courses, suppose in one BTech program, you must be teaching somewhere around 60 plus courses to one student. Maybe 7 in first semester, 6 in next semester, and 4 or 5 in third semester, including labs, including project, including electives, open electives, department electives, etc. So what I want to say here, what I want to make over here, your
course objectives for the individual course are different. Suppose I'll take example for the electronics department. If you are teaching a digital electronics must be having a CO1, CO2, CO3, CO4. These CO1 and CO2 and CO4 are going to be matched with your PO1 to PO12. I'll show you in the next slide what is the PO1 and PO2 before we'll take the terminologies of SAR assessment. Now please make a note of this. There are assessments in a two types: direct assessment, indirect assessment, which going to touch the final sheet of your attainment level. The attainment is a direct attainment and indirect attainment. Attainment of what? Whatever we are discussing over here, student centric. एक विद्यार्थी जब आपके कैंपस में आज आता है 2020 में, वो 2024 में क्या लेके जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपने क्या दिया, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. उसने क्या लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड आउटकम. इट्स नॉट इनपुट बेस्ड एजुकेशन, इट इज कम आउटकम बेस्ड एजुकेशन. हम ये नहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 5 नंबर कहाँ काटे. हम ये जानना चाहेंगे आपने उसको 5 नंबर लेने के लिए सक्षम कैसे नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया. तो ये असेसमेंट कैसे होती है. These assessments are made in the two categories. First, I'll come to the direct assessment. Under the direct assessment, there are different tools. जैसे कि 6 महीने की क्लास में आप बच्चों की गुड नंबर ऑफ क्विजेज लेते हैं, उनको असाइनमेंट्स देते हैं, इनको ट्यूटोरियल्स देते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम भी लेते हैं, और लास्ट में एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी बच्चा परीक्षा में बैठता है. These all carries the direct assessment tools, including your assignments, tutorials, quizzes, and even a small project work you had given during a lab sessions or during maybe a project session. These all comes under the assessment tools. And how to evaluate it? There are two ways of evaluation. For the direct assessment, evaluation is very simple. You are evaluating, you are giving a marks. But now, based on NBA preparation, you cannot simply plain just give a question paper and evaluate and giving a marks. Out of 30, you got 15. Out of 30, you got 20. No, the scenario is changed now. The very first, your question paper has to be designed as per the Bloom taxonomy. The Bloom taxonomy never allow you to write a question like define this, write a short notes on this, give a description of this. These questions has to be totally practical oriented questions. I agree. Some of the subjects are very theoretical, and you have to ask the questions, give a schematic diagram, describe this diagram with the help of diagram. Yes, but you have to mold a language as per the examination reformation took place under the Bloom taxonomy to evaluate the system in that way, to evaluate the learner in that way or stakeholder in that way, that how much he could learn. Not to check, not to show him that you have not learned this. You have to evaluate what actually he learned. So this evaluation system is going to be changed as per the NBA criteria, as per the latest national education policy criteria. And I spoken about the indirect assessment. What is that indirect assessment? आपने बच्चे को क्लास में जो मूल्यांकन किया उसको मैंने डायरेक्ट असेसमेंट का नाम दिया, लेकिन बच्चा क्लास के बाहर जो दुनिया में बैठता है, दुनिया में विचरता है, दुनिया में बात करता है, वार्तालाप करता है, वो फीडबैक जो लिया जाता है उससे पता चलता है कि ये विद्यार्थी सच में किसी संस्थान का हिस्सा है कि ये अभी तक हिस्सा बना ही नहीं. He is coming physically, he is sitting in the campus for last 4 years, but he doesn't understand what is the value of JEC-RC. कि उसने JEC-RC के करिकुला को नहीं अंडरस्टैंड किया, फैसिलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, सबसे बड़ी बात उसको एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता. वो कैसे पता करेंगे आप? There are 7 types of feedbacks. The very first feedback is the student's feedback itself. जैसे कभी कोई कोर्स हम पढ़ा देते हैं तो कोर्स के बीच में, in between the course, during the mid semester, we have to have the feedback. It is not the feedback to let down your faculty. Please mind it. Because many times we use it as a tool कि नहीं आपका इंक्रीमेंट रोक देंगे क्योंकि बच्चे आपसे खुश नहीं है. ऐसा नहीं होता है. बहुत बार ऐसा देखा जाता है. The when teacher is very sincere, he is teaching the class with a very sincerity and he is a strict enough for the attendance. The students don't like sometimes that teacher. वो आज भले उस टीचर को इतना लाइक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो टीचर उनको क्लास में आने के लिए कहता है, टीचर उनको होमवर्क देता है, टीचर उनकी असाइनमेंट्स देता है, टीचर उनको डांटता भी है क्लास में. क्यों? वो एज ए टीचर है. लेकिन जब वो 4 साल के बाद पास आउट होकर इंडस्ट्री में जाते हैं, देन दे रियलाइज कि शायद उसी टीचर के कारण आज हम इंडस्ट्री में खड़े हैं क्योंकि उसने कम से कम हमें इस लायक बना दिया. He made to this level we could gain. So the feedback during the session
and feedback after the degree, it's again important. So I repeat, during the session is the feedback of the students. Uske baad second feedback from the immediate exit students. The moment the student is going to take a notice, when he is going to complete his all exams, he immediately can tell what is a good and what is a bad in my system, my institution, my department, my laboratories, my library, my hostel, or even it myself. उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना ओबीई बेस्ड है, इन लाइन है, इन ट्यून है कि नहीं है. द थर्ड फीडबैक कम्स फ्रॉम द एलुमनाई who already passed out 2 years back. He already saw the society. He compared his knowledge as with the other passed out students from the different institutions, including a national level institutions, international level institutions. Then he can tell what kind of deficiency he could find himself or what kind of strengths he could get because of JACRC or because of your institution. So these three feedbacks, I repeat, current student feedback during the session, the feedback just after exit the degree, and the feedback from the alumni, which is minimum 1 year passed out from your institution. Now I'll come to the fourth feedback. The fourth feedback is from the parents of the stakeholder, like the parents of the students, those already passed out. Why so? Because the parents are the best feedback process to tell when I sent my ward to your campus 4 years back or 5 years back, what level of thought process he or she must carry, and she was carrying, and after passing out, what kind of the troubles he could see in the life, and today he's settled in his life because of the education, because of the confidence, because of the commitment, because of the content delivered by your university to my ward. This feedback is very important. That is the feedback from the parents of the alumni. I'll come to the next feedback, where the students are surfing. They are working with some corporate departments, they are working with the industry, they are working with some offices, maybe in government or private. Feedback of employer, because employer, which is having good number of employees from the different parts of country with the different institutions background, they can compare and tell आपके बच्चे में कितनी obedience है, कितना हाइजीन है, कितना क्लीनलीनेस है, कितनी लॉयल्टी है, कितनी इंटीग्रिटी है, whether he is a good guy or he could not get that kind of values which is supposed to be given along with the engineering. हमने बच्चे को 4 साल इंजीनियरिंग बहुत पढ़ा दी, हमने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा दिया, हमने ब्लॉकचेन पढ़ा दिया, वी गिवन ऑल द बेस्ट टूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. डू वी टीच द ह्यूमन वैल्यूज? Could we teach the values, the ethics which we supposed to be given? This is the part of my POs. I'll show you the PO, then you will come to know. So this is another feedback. I have think you have noted down the feedback from the employer. And at the last but not the least, the feedback has to be come from the stakeholders. Stakeholders, आपकी यूनिवर्सिटी में जहां से सप्लाई आती है, आपके यूनिवर्सिटी में जो कोई वाइट वॉश करने आता है एक लेबरर, उससे भी पूछिए कि आपको ये संस्थान में 1 महीना हो गया वाइट वॉश करते, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या सच में पढ़ पा रहे हैं? क्या उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आती है? द फीडबैक ऑफ योर ऑल वेंडर्स, द फीडबैक ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, MHRD, AICT, UGC, NCT, BCI, PCI, जिससे आपके इंस्टीट्यूशन का रिश्ता है, for which you are a stakeholder for them, you have to have the feedback about your institution. They will see your website, they will see your best practices, they will see your innovative ideas. आज अगर इस कोविड-19 की उसमें जयपुर में अगर JCRC ने अपने इंस्टीट्यूशन में आइसोलेशन क्रिएट कर लिया, सैनिटेशन वार्ड बना दिया, जब आपके बच्चों ने कोई भी एक इस तरह का वेंटिलेटर बनाने की चेष्टा भी की, जब कोशिश भी की, जब बना भी दिया, ये क्या है? ये फीडबैक दे रही है सोसाइटी, आपके पड़ोस वाले, आपके शहर वाले, कि JCRC के बच्चों ने ये कर दिखाया, JCRC की फैकल्टी ने कर दिखाया. दिस फीडबैक इज इक्वली इंपॉर्टेंट, द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स, फीडबैक ऑफ द पेरेंट्स, फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयर्स. सो हाउ टू मैप दिस? द मैपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आज तक हमारे देश की 80% फैकल्टी को ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आ पा रहा है, ये एक्सेल शीट समझ नहीं आ पा रही, सीओ और पीओ को कैसे मैप किया जाता है. और आज भी मैं इस आपको वीडियो से नहीं सिखाऊंगा, और वीडियो से नहीं सिखाया जा सकता until unless we have the hands-on practice. There should be a workshop. Maybe you might have invited many experts in your campus and you might have learned this.
how to get this attainment level and attainment factor, because it is a calculation. Yes, it is a calculation, but this calculation needs some data, which data has to become, and we call it as a rubrics. Rubrics provide a powerful tool for assessment and grading of student work. rubrics क्या होते हैं, मैं आपको छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ, you will understand it. It's a new word for us, but although it's a very old. जब हम 10वीं परीक्षा पास किए थे, पहले हमें छोटा सा रिपोर्ट कार्ड मिलता था, फिजिक्स में इतने मार्क्स, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स, मैथ्स में इतने मार्क्स, मेरे टाइम पर और आपके टाइम पर। आज जो पिछले 3 साल से डिटेल मार्क्स कार्ड 10वीं का आता है, वो इतनी बड़ी शीट है बाय सीबीएसई, आप उसको खोल लीजिए, यू ओपन इट, यू विल सी many of the other traits of the ward which have gone through during his 10 years of study or learning in the school has been reflected. Leadership quality, confidence, hygiene, कितना सिंसियर रहा, हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, स्पोर्ट्स में कैसा है, कोकुलर एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट करता है, कितना इनिशिएटिव है, कितना बैक बेंचर है, कितना आगे बढ़ के बात करता है, कम्युनिकेशन कैसी है, क्या अपनी बात रख पाता है दूसरों के सामने कि नहीं, ये क्या है। दीज आर द ट्रेड्स, दीज आर द एवेल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल वार्ड। यही रूब्रिक्स हमें हेल्प करते हैं आज हमारे बच्चे का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए। टुडे द इंडस्ट्री इज टेकिंग अ गाइज नॉट बाय लुकिंग देयर सीजीपीए, they are looking what kind of skills he has, what kind of confidence he has or she has. वो कहाँ से पता चलेगा उसको, क्योंकि 10 मिनट के इंटरव्यू में स्किल्स नहीं पता की जा सकती। 20 मिनट और 1 घंटे के एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में वो वॉमिटिंग करके आएगा, तो आप जज नहीं कर सकते कि उसने रट्टा लगा रखा है और ये एक्चुअली हैव समथिंग इनकलकेटेड इन हिज माइंड, इन हर माइंड। वो टीचर से मांगते हैं बच्चे के रूब्रिक्स। प्लीज प्रोवाइड मी द रूब्रिक शीट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास थ्रू योर ईआरपी। मैं देखना चाहता हूँ कि ये 1 साल में, for example, if somehow when I am a topper of my class and during my 4th semester I just suffered with a dengue and I got detained because of my attendance shortage, तो मेरी जिंदगी के लिए मेरे लिए एक धब्बा लग गया कि मैं बचपन से गोल्ड मेडलिस्ट था, टॉपर था, लेकिन चौथे सेमेस्टर में मुझे डेंगू होने के कारण मैं एक सेमेस्टर नहीं जा पाया, मुझे डिटेन किया गया, मेरी डिग्री 1 साल लेट होगी, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एसएसबी, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर माइक्रोसॉफ्ट और डेल because they are looking for the all clear. No, the scenario got changed. They even least bother what kind of CGPA you're getting. Minimum CGPA is your first degree. If you have a first class degree, that's more than sufficient for the any corporate. But they equally want to see how skillful you are. तो स्किल्स के ऊपर आज बात नहीं करेंगे क्योंकि स्किल के लिए पूरा एक सेशन होता है. There are different types of skills: the life learning skills, the ancient Indian skills, the knowledge based skills, and this is another part of discussion. But this is the rubrics part. So now I was discussing about the POs. Based on this POs, the very first PO is the engineering knowledge. मान लीजिए आपके यहाँ पर कुछ फैकल्टी फार्मेसी की बैठी है तो वो कंफ्यूज ना हो, अगर आर्किटेक्चर की बैठी है फैकल्टी जाकर बीडीएस की बैठी है तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये पीओ को आप अपनी डिपार्टमेंट के बेस पर टीवी आउट कर सकते हैं लैंग्वेज को. पीओज विल बी रिमेन सेम. तो आप इंजीनियरिंग नॉलेज की वर्ड पे लिखेंगे आर्किटेक्चर नॉलेज, और मे बी मेडिकल साइंस नॉलेज, और मे बी फार्मेसी नॉलेज. उसमें आगे आपकी लाइन वही रहेगी, अप्लाई द नॉलेज ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स साइंस, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग और फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फार्मेसी प्रॉब्लम्स. मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा है, आपके फार्मेसी आ जाएगा. तो बिल्कुल मत घबराइए कि ये पीओ सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बने हैं और ये आपको एज इट इज लेने हैं. नहीं, आप अपने डिपार्टमेंट की रिफ्लेक्शन, उसका एसेंस, उसका फ्लेवर देंगे हर उस पीओज में. अब पीओ 2 ले लीजिए, प्रॉब्लम एनालिसिस, ये कॉमन है. भले आप इंजीनियरिंग से हैं, भले फार्मेसी से हैं, भले लिटरेचर से, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना, फॉर्मुलेट करना, रिसर्च लिटरेचर पढ़ना, एनालाइज करना आना चाहिए. दिस इज द पीओ 2. व्हाट इज द पीओ 3? डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस. क्यों डिजाइन क्यों नहीं करता है? आज लिंग्विस्टिक वाले को भी डिजाइन करना पड़ता है ट्रांसक्रिप्ट्स को. आज हमारा फार्मेसी वाला डिजाइन कर रहा है, डिस्कवरी करना, उसको नया ड्रग ढूंढना है कोविड-19 के लिए, तो ही हैज टू डिजाइन सम सॉल्यूशन. कंप्यूटर वाला एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला मशीन डिजाइन कर रहा है. यू टॉक एनी ब्रांच, यू टॉक आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को आज बताना पड़ेगा देश को कि हमारा डिफरेंट 3 मेन्यूज होते हैं, कि मुझे कफ का मेन्यू सर्व करना है, कि मुझे पित्त का मेन्यू सर्व करना है, कि मुझे वात का मेन्यू सर्व करना है, खाना क्या चाहिए. किसी को रात को दही खानी है, किसी को दही नहीं खानी, कौन बताएगा? इंजीनियर नहीं बता सकता. आयुर्वेदा पढ़ने वाला बच्चा बता सकता है, डेवलपमेंट करेगा, सोल्यूशन बना के बताएगा कि आपको कौन सा भोजन लेना चाहिए एज पर योर बॉडीज इम्यून सिस्टम. come to conduct an investigation of complex problems. Complex problems कहाँ नहीं होती हैं? आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? नो, यू आर रॉन्ग. आज से 3 साल पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि ग्लोबल में वर्ड आ गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
that they were surfing a lot, they were searching a lot papers and they are doing. आज कौन है? आज सबसे टॉप पर आ गया है मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस से भी आगे आ गया फार्मास्यूटिकल साइंस। आज अगर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, तो पूरे वर्ल्ड के फार्मास्यूटिकल्स के सामने है कि मुझे वो ड्रग जितनी जल्दी ढूंढनी है, जितनी इकोनॉमिकल ढूंढनी है, कि मैं पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेट करना चाहता हूँ कोविड-19 से। सो सी द हाउ अलार्मिंग सिचुएशन एंड हाउ बिग challenge is before that. So modern tool usage कौन करेगा? Do you think that only the pharmaceutical guy is sitting in a room and he is discovering a drug and it is going to be discovered? उसको जितनी भी आइट्रेशंस करनी है उसके लिए ग्राइंडर कौन बनाएगा, बॉयलर कौन बनाएगा? मैकेनिकल इंजीनियर के बिना नहीं बन सकेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसकी आइट्रेशंस के लिए सिमुलेशन कौन करवाएगा? कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। उसको एक अच्छे कमरे में बिठा के वहां पे उसको जहां पे R&D करवानी है, और उसकी ट्रायल किसके ऊपर करनी है? उसको इंजेक्ट करवाना है, उसको इनहेल करवाना है। तो ये सारी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ कॉम्बो पैक. The modern tool usage does not mean that only the computer science engineer should know Python. I think everybody in this who's doing a graduation, irrespective of BA or BSc or BCom, they should have at least one computer tool, computational tool with them for this modern use. Then what is the PU6? The engineer and society. Now look at here. Today, we all are sitting at home. पूरा वर्ल्ड घर में बैठ गया। तो ये सोसाइटी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सोसाइटी ऐसी होती है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने हमें सोल्यूशन दिया था। आज मैं आपसे घर बैठ के, आप अपने अपने घर बैठ के मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमने अपने वी अप्लाई द रीजनिंग इन्फॉर्म्ड बाय द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। हमने उस नॉलेज को पकड़ा। क्यों? हेल्थ चाहिए, सेफ्टी चाहिए, अभी हमें चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग। सो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेस्ट क्या पता? ई लर्निंग पता चला, मूक्स पता चले, स्वयं की परिभाषा समझ में आई। नहीं तो आज से 2 साल से स्वयं के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिल्ला चिल्ला के थक गई थी कि बच्चों को स्वयं से पढ़ाना शुरू करो, बच्चों को 20% चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लो। जेसीआरसी ने पहल की, उन्होंने अपने बच्चों को क्रेडिट्स देना शुरू किया, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज दे पाई आउट ऑफ 203? यू कुड हैव टू सी। सो मेनी यूनिवर्सिटीज आर स्टिल, बट नाउ दे रियलाइज इट, बट इट्स लिटिल लेट, क्योंकि उनकी फैकल्टी को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि मूक्स कैसे बनाए जाते हैं एंड हाउ टू कम बिफोर द जूम मीटिंग टू बी कंडक्ट द क्लासेस एज अ गूगल क्लासरूम. What is a PO7? Environment and sustainability. Understand the impact of the professional engineering solutions, environment context, and demonstrate the knowledge. जब तक आप बच्चे को वो environment ही नहीं दे रहे हैं कि वो सीखे। अभी देखिए ना, सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को environment मिल गया ना कुछ करने के लिए, और ऐसा environment मिला है, और डॉक्टर्स को क्या environment मिला है कि वो अपने घर भी जाके रात को नहीं सो सकते, because they are treating their patients. तो इसके साथ ethics आ गया, environment के साथ ethics. आज डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि if I'll conduct a test on you, I'll take a lakhs of rupees from you. No, they are rather paying from their pocket. This is the ethics we have to teach. If we will not teach during the examination, during the institution stay of the learner, we are lose. So ये सारे POs बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं. Individual and teamwork. हर एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल और टीम वर्क की जरूरत पड़ती है. As an individual, how good I am, and today is the teamwork, how good we are. So the communication. If I cannot communicate today, I'm communicating with you, you are listening me, you are making notes of it. If I will speak in that language you doesn't know, and you're tomorrow the learner. मान लीजिए आपने राजस्थान में अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवा दी, और आपने क्लास में 80% हिंदी में पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ाना है, हिंदी हमारी एक भाषा और बच्चे कंफर्टेबली, लेकिन हमने एग्जाम तो अंग्रेजी में लिया, हमने बच्चों से वाइवा तो इंग्लिश में लिया, क्यों? उनको पूरे वर्ल्ड में जाके बात करनी है, दे हैव टू स्पीक इन द होल वर्ल्ड. The communication is equally important, which should be the international level, globally acceptable language we have to make them to learn for their learning. So the project management and finance is another issue we have to discuss. आज आपने बच्चों को MBA करवा दी, लेकिन उसको DPR नहीं बनानी आती है. How to create a detailed project report, how to get a loan from bank, how to become a startup. स्टार्टअप बनने के लिए अगर उसको प्रोजेक्ट मैनेज ही नहीं करना आ रहा, सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक डिवाइस बनाई और उसका पेटेंट करवा लिया, उसको सेल कौन करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? बिकॉज आई हैव टू डील विद द मेनी डिफरेंट पीपल इन सोसाइटी एंड आई हैव टू लुक एट द फाइनेंस आल्सो. सो द लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज आफ्टर डूइंग ऑल दिस. If we are doing a lifelong learning, it means we are doing our engineering, our pharmacy, our PDS, our medical science, our law in a true spirit. So please mute your mic. Someone's mic is unmute. So please mute your mic. Otherwise, disturbance will go to the every listeners. Now I'll come to the parameters. आपका क्या evaluation करना चाहते हैं? कौन? जो NBA की टीम आएगी, जो आपका SCR है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज. शुरुआत यहाँ से होती है कि आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, क्या आपने सोलर का कभी उपयोग करने की कोशिश की है,
क्या आपके वेस्ट डिस्पोजल है? आपकी मेस में कितना खाना बच्चे थाली में छोड़ जाते हैं? कितना वेस्ट आपको फेंकना पड़ रहा है जब बाहर जा रहा है? क्या आपके यहाँ पर अन्न वेस्ट हो रहा है? क्या आपके यहाँ पर बिजली वेस्ट हो रही है? क्या आप यहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है? या क्या यहाँ आपकी हवा दूषित हो रही है? ये सारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। So I again request to the one of the participant to please mute their mic. Otherwise, it will be disturb my talk also. I have to stop my. So I will pause my talk until the mic is going to be get. Okay, thank you. So now I'll come to the second one is the faculty teaching and learning. Yes, if we have a faculty in our institution, in our department, what is the level of the faculty? How much are they graduated, the post-graduated, they are doctorate, they are post-doctorate? How much they have published during their last 5 years? How much they could get patents during last 5 years? How many books they have wrote during last 5 years? How many visited abroad to give the presentation for the national international conferences? What journals they publish their work? How many research projects they brought in JCRC? This is the teaching learning. How many e-learning portal they are using? How many students how many MOOCs they have created? How many e-content they have created? What best examples they have created for this society, for this world while teaching? Means they are teaching pedagogy. We are going to get all this is the part of SAR. Industry interaction. How this industry interaction? Not only just sending your guys for the internship, not only your guys sending for the placement. How much industry is visiting your campus for the consultancy? How much industry people are coming to deliver expert talk during your semester system to fill the gap, which gap you could find in the curricula as per the industry 4.0. So these all data has to be get procured. Employability and placement record. Of course, please make sure that don't be fake for anything, because 100% placement cannot be made by any institution, because 100% placement is not required by the learners. आज हमारे देश के 60% से ज्यादा विद्यार्थी आपसे प्लेसमेंट मांगते नहीं है, क्योंकि बहुतों को हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है. Many they go for their parental occupation. Many they go for abroad for their future scenario or maybe future learning, for which you can't help them. You only can help them to be get the placed in our Indian system as per the Indian system of the corporate or MNCs or maybe government offices or PSUs, etc. So this placement you have to keep trying, and you will be definitely trying, and your students are going to be get placed based on their skills, based on their learning and knowledge for which they are going to be sit before the interview panel. What students can do after graduating is the most important part. You see the criteria, this what students can do after. आपने बच्चे को job seeker बनाया है कि job giver बनाया है? If he is a job seeker, then I think your OBE is not complete. If your learners say, I can even start my own self-entrepreneurship, or I can be a startup, or I can have my own industry, maybe after 3 years of experience or 4, at least that courage, the confidence we could see in the feedback form. When we ask the feedback from the learner, they should tell, yes, I'm confident enough, at least one, my topic, one, my area of specialization is so strong, I have a mastery in it, that I can go for that level. I can design some new problem. I can solve new problem. I can make a solution for this world. Because whether institute provides all that is necessary for a confident engineer for tomorrow. आपको पता होना चाहिए, हम आज इस समय पर ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. आपको पता है 3 महीने पहले क्या सिचुएशन थी? JCRC पूरा बिजी था इस चीजों में. दुनिया भर की इवैल्यूएशन चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, कितनी भाग दौड़ थी. आप सब बिजी थे. कोई नई गाड़ी परचेज कर रहा था, कोई घर के लिए नए खिलौने लेके आ रहा था. आपको पता अगले 3 महीने के बाद क्या होने वाला है? डू यू थिंक दैट इंडियन सेंटिमेंट्स विल बी सेम? डू यू थिंक अवर लाइफस्टाइल विल बी सेम? नो. द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट चेंज. डोंट टेक इट इज लाइटली. ये कोविड-19 कोई छोटी मोटी चीज नहीं आई है. इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 ऐसी वार है जिसमें एनिमी विजिबल ही नहीं है. किसको मारेंगे आप? खुद को मारेंगे? अपने घर में बुजुर्ग को जो इन्फेक्टेड होगा उसको किसको मारेंगे आप? आपकी सारी मिसाइल्स धरी की धरी रहेगी. आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी काम नहीं आई. आपके सारे रफाल किसी काम नहीं आए. सिर्फ इस टाइम क्या काम आ पा रहा है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि कल इस विपदा के बाद भी मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, मेरा देश खड़ा हो जाएगा, हम देश के लिए कुछ कर सकेंगे, हम दोबारा अपनी वही प्रगति को, अपनी जीडीपी को, अपने लोगों की रोजगार को वापस लेके आ सकेंगे. डू यू नो दैट टुडे हाउ मेनी
laborers sleeping without a food. We can't reach them. Although many NGOs are working, all government, I appreciate my whole government system. Every state government, our national government, they are doing amazingly. इतना अच्छा तो शायद ही किसी देश की गवर्नमेंट कर पा रही है जितनी अच्छी हमारे देश की गवर्नमेंट कर पा रही है, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट. उसके बावजूद एज पर अवर पॉपुलेशन डेंसिटी वी कैन नॉट रीच टू एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ दिस कंट्री. हमें पता नहीं कौन घर में कहाँ भूखा बैठा है, बीमार बैठा है. तो हमें इस तरह का बच्चा पैदा करना है, कल वो देश की हर तरह की जरूरत को पूरा कर सके और आने वाली इस तरह की विविधता. इट्स अ बिगनिंग. यू सी मेनी मोर थिंग्स वी हैव टू सी इन आवर लाइफ बिकॉज इट्स अ बिगनिंग. So these all are the parameters for the evaluation. Now I'll come to the case studies, very important case studies. अब इसमें लास्ट में नीचे ऐड कर लीजिए बुलेट के साथ, हाउ टू हैंडल अ कोविड-19. क्योंकि केस स्टडीज बढ़ गई. आज से 3 साल पहले हमने क्या किया था, वित्तीय साक्षरता अभियान. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन विज्ञान भवन वी इनवाइटेड द होल कंट्रीज learners, though have done the वित्तीय साक्षरता अभियान in their campuses, in their areas, in villages, how to use a Bheem, how to use a Paytm to the elderly people, how to draw their pension. और हमने उनको लैपटॉप प्राइज में दिया था. 350 बच्चों को हमारे रविशंकर जी ने और प्रकाश जावड़ेकर जी ने लैपटॉप्स दिए थे. तो क्या था ये, आपको स्वच्छता का रैंक मिल चुका हुआ है. आई एम श्योर जेईसी आरसी आल्सो गॉट अ स्वच्छता रैंक. वित्तीय साक्षरता चली, स्वच्छता रैंकिंग चली, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जेईसी आरसी ने 2 गांव खोद ले रखे हैं. आई एम श्योर अबाउट दिस एंड दे आर डूइंग इट. पीएमकेवीवाई, द जयपुर की वर्कशॉप, आई स्टिल रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर कौशल. ये सारी क्या चीजें हैं, ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन में हट के आप एक रूटीन बीटेक करवा रहे हैं, एमबीए करवा रहे हैं, पीएचडी करवा रहे हैं, वो तो सारे करवा रहे हैं. 806 यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, आपने क्या करवा दिया. लेकिन आप बीइंग वन यूनिवर्सिटी, अदर देन योर टीचिंग मैंडेट, व्हाट एल्स यू आर डूइंग फॉर योर नेशन, फॉर योर सोसाइटी, एटलीस्ट फॉर योर जयपुर. जयपुर की गर्मी पूरे इंडिया की गर्मी से अलग है. जयपुर की धरोहर पूरे इंडिया की धरोहर से अलग है. तो वहां की धरोहर को प्रिजर्व करने के लिए, वहां के ट्रैफिक सिस्टम को, वहां के वेस्ट मैनेजमेंट को, तो आपने भी कुछ ना कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की होंगी. यू हैव टू मेक ए नोट ऑफ इट. इट इज अ पार्ट ऑफ एसएआर. अभी इसमें नया ऐड हो जाएगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके वॉलंटियर्स ने क्या किया, कितने मास्क आपके वहां से डेवलप हो रहे हैं, कितने वेंटिलेटर्स बनने की कोशिश हो रही है, या किसी के साथ आप मिलके कुछ ज्वाइंट एमबीयू करके भी कुछ कर पा रहे हैं. जाने वाले दिनों में करेंगे, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से, because it is started, it's the beginning of this problem. So this is the criteria for the evaluation. The stakeholders feedback already discussed, the peer team visit, internships and all this we already discussed. Now I'll come to the broad way. बहुतों को ये जानना होगा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन है क्या चीज. अभी सुबह से इसके बारे में सुन रहे हैं. ओबी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, करिकुलम, कंडक्शन एंड इवैल्यूएशन. तो आगे बढ़ता हूं मैं. करिकुलम क्या चीज है, इंडस्ट्री बेस्ड होना चाहिए, बहुत देर से सुन रहे हैं. लोकल एरिया नीड को लेके आना चाहिए, जी हाँ लेके आए हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी बीटेक में जो 64 सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपने बीइंग जेएसी आरसी करिकुलम के एक किसी कोर्स में 25% ऐसा कोर्स डाला जो लिटरली आपके राजस्थान की हेरिटेज को टच करता हो, राजस्थान की किसी चीज, कोई ऐसी विकास या ऐसी कोई कौशल मरता जा रहा है उसको जिंदा रखने के लिए वो करिकुलम पढ़ाया जाता हो, या राजस्थान में हुई कुछ उपलब्धियों को बताने के लिए वो करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यू हैव द अथॉरिटी, you have your own board of studies, you can tweak out the model curriculum for 20% or 30% even. AICT ने आपको मॉडल करिकुलम दिया है, उसने ये नहीं, उसने थोपा नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड बनाना. उसने कहा है 30% ये ले लो. You can't touch the core competency. Core competency is 60%. What is rest 20%? 20% is the other department, इंट्राडिसिप्लिनरी. जैसे फिजिक्स पढ़ानी है, मैथ्स पढ़ाना ही पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ानी है. वर्कशॉप के बिना गुजारा नहीं होने वाला. बच्चे को लेथ यूज करनी आनी चाहिए, बच्चे को कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी सिखाने. लेकिन एक 20% होता है ओपन इलेक्टिव्स. वहां पर क्या आप स्वयं से बच्चे को पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं? क्या आपका बच्चा इंजीनियरिंग करते करते डांस या म्यूजिक लेने की अगर रुचि रखता है तो क्या वो ले पा रहा है? तो दिस इज द करिकुलम विच वी हैव टू शो हाउ सिमिलर इट्स टू द मॉडल करिकुलम टू एचडी, हाउ बैलेंस्ड, बिकॉज ऑफ योर बीओएस. बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो भी आपके मेंबर्स आते हैं वो जरूरी आपके स्टेट से नहीं आने चाहिए, वो दूसरी स्टेट से आने चाहिए, क्योंकि वो बता सकें कि आपकी स्टेट, क्योंकि जो जयपुर के बारे में मैं शायद यहाँ बैठ के बता सकता हूँ, शायद जयपुर में बैठे आप नहीं बता सकते कि आपकी जयपुर की बाहर प्रसिद्धि किस बात से है. व्हाट इज द परसेप्शन अबाउट द जयपुर, मे बी जयपुर हेरिटेज, मे बी जयपुर सम आर्ट एंड क्राफ्ट, एनीथिंग. सो अगर वो है तो अपने बच्चों को हम उसका फ्लेवर ना दें. जब मान लीजिए आपके जयपुर में वो बच्चे जो दूसरे संस्थान से या दूसरे शहर से पढ़ने आए हैं, उनको भी सुगंधी लेके जानी चाहिए कि मैं इंडिया की किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ के आया हूँ, जहां पर ये चीज बहुत प्रचलित है.
पता चला उसने 4 साल जयपुर का वो व्यंजन तो खाया, लेकिन घर जाके एक बार भी अपने माँ-बाप को बना के नहीं खिला पाया, क्योंकि वो तो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको किचन में थोड़ा ना काम करना है। दिस इज़ नॉट फेयर। If he or she cannot cook that particular dish which is famous for the Rajasthan, then I think our engineering is also incomplete. This is a part of the curriculum. कंडक्ट कैसे करते हैं, सभी अपना लेक्चर प्लान बनाते हैं, कोर्स फाइल बनाते हैं, आपका एकेडमिक कैलेंडर होता है यूनिवर्सिटी का, उसको फॉलो किया जाता है। इफेक्टिव यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट टेक दिस बिकॉज माय सेशन विल गो सो लॉन्ग, मैं पूरा दिन भी बोलूंगा तो भी कम नहीं होगा, लेकिन मुझे आपको इतना लंबा नहीं बिठाना है। ऑलरेडी सेशन इज गोइंग ऑन एंड लकीली हमें 40 मिनट के बीच में ब्रेक नहीं मिलनी पड़ी बिकॉज चित्रा वाज वरिंग अबाउट दिस, वी हैव टू रिकनेक्ट, बट luckily we have, I'm thankful to Zoom also to giving this facility to us to a long discussion. तो ये इफेक्टिव यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग लेके आना है, आपको फ्लिप लर्निंग मॉडल लेके आना है, इसके ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे फ्यूचर में। लेकिन आपको ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, गूगल क्लासरूम जैसे, हॉट पोटैटोज और मैनी मोर दिस काइंड ऑफ द ओपन मॉड्यूल्स यू हैव टू यूज टू टीच। आज मेरे बच्चे मेरी क्लास में इतने खुश नहीं होते थे, आजकल इतने खुश हैं। एक तो अपने घर में बैठ के मेरी क्विज को पढ़ रहे हैं, मेरी क्विज के मार्क्स भी लगा रहे हैं, और जब मैं उनको बोलता हूँ कि आ जाओ अपनी जूम पर अपनी प्रेजेंटेशन दो, बड़े तैयार हो के, इसी बहाने वो तैयार हो रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने मुझे कंग्रेचुलेट किया कि 10 दिन से ये नहा नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था। आपकी ज़ूम मीटिंग के कारण आज ये नहाया, इसने बालों में कंघा भी किया और आपके सामने आकर इसने आज प्रेज़ेंटेशन दी, हमें बड़ी अच्छी लगी। तो ये क्या है? दिस इज़ द कंडक्शन वी ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस काइंड ऑफ कंडक्शन इज़ वेरी मच इफेक्टिव एंड वी हैव टू मेक इट। इवैल्यूएशन सिस्टम इज़ अगेन another part of concern. The examination center has to be completely secret and safe. ब्लूम टैक्सोनॉमी की अप्रोच आपको क्वेश्चन, आपको कम से कम 10-10 सेट बनाने पड़ेंगे हर सेमेस्टर में, हर कोर्स के लिए, जो आपका क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना होगा। बच्चे को पहले मॉक पेपर देना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट के द्वारा। बच्चे का बिल्कुल भी एग्जाम फियर नहीं होना चाहिए। वो कभी ऐसे, जब हम बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में हनुमान जी की तस्वीर लगा के, तुलसी के 2 पत्ते रख के, मिश्री रख के जाते थे, और एग्जाम जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे, वी बिकम ब्लैंक, और घर आके फिर मार खाते थे पेरेंट्स से कि तेरे को सारा पढ़ाया था, तू सारा भूल गया क्यों? ये फियर ऐसी चीज होती है। इस पे मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा भी करवाई है दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम में। आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज़ द फर्स्ट event was organized by VAICT people and I was a part of that. So what is that? If the student is practicing the same thing from last many days, then exam is nothing but is a routine practice for him. So this kind of evaluation system we want. हमें बच्चे को डराना नहीं है, हमें बच्चे को सिखाना है टू मेक श्योर कि वो सीख के बता भी सके। सो द रेमेडियल एक्शन प्लान फॉर द स्लो लर्नर्स, सारी क्लास में एक प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं, एससीआर का एक हिस्सा है। स्लो लर्नर्स के लिए हमने रेमेडियल क्लासेस लगाई कि नहीं लगाई, लगाई तो कितना इफेक्ट आया, तभी आप नोट करेंगे आपके एसआर में हम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अलग से मांग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के बच्चे जो इंजीनियरिंग में बाय फोर्स आते हैं, पेरेंट्स के सपनों के कारण आते हैं, वो फर्स्ट ईयर में उनकी सप्लीज ज्यादा आती है। किसमें? साइंस में, मैथ्स में मास सप्लीज आती है। इसका मतलब वो इंजीनियरिंग बाय फोर्स आए, नॉट बाय चॉइस। फॉर दैट रीजन वी हैव टू चेक whether our induction program of 21 days as per the AICTE norms, we could conduct it successfully. If we conducted, it is a part of evaluation. If we could not conduct it, तो sample question papers देना और मिड सेमेस्टर एग्जाम की बच्चों को आंसर शीट वापस दे देनी, बच्चा वो मेजर में पढ़ के आ सके कि मैंने उस टाइम पे क्या गलती की थी, मेरे 2 नंबर क्यों कट गए थे, मैं इस बार नहीं कटने दूंगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे करिकुलम इज सेम, the syllabus is going to change. In the mid semester exam you've taken a unit 1, but in the end semester exam you're taking unit 1, 2, 3 and 4. So why you're keeping assignments with you? You have to validate and give it back to the learners. आपके ERP पे मार्क्स आ गए, that's more than sufficient. You need not to be scan it, you need to be preserve it. Let only the end semester exam sheets has to be remain with the university as per the UGC norms, because sometimes the litigation comes, then we have to go for that. So the CO and PO should be mapped with the question paper is the most important part. I will take directly to that because otherwise time is going to be a very short. So मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो ये 3 की प्रिंसिपल्स होता है हमारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन का। ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड सक्सीड बट नॉट ऑन द सेम डे। आज आप में से जितने भी बैठे हैं, लेट मी सी द टोटल नंबर 61, ऑल 61 टुडे दोज आर लिसनिंग मी, 10 मस्ट बी थिंकिंग कि मेरे लिए रिपीट हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं, मैंने पहले पढ़ दी। 10 को ये लग रहा है अरे यार ये पहली बार पता चला कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन भी होता। 25 को ये लग रहा है डॉक्टर मन्ना है, चलो अच्छा बोल रहे हैं, हमें बोला गया छुट्टी का दिन था, अटेंडेंस का चक्कर है, कहीं अटेंडेंस भी ना चले जाओ इनके पास, तो आ जाते हैं क्योंकि इसकी जो है चित्रा अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करेगी तो भेजेगी, तो उस हिसाब से बैठे हैं। लेकिन सब सुन जरूर रहे हैं। अगर उनका इस टाइम वीडियो म्यूट है लेकिन उनके कानों में स्पीकर, हो सकता है वो इस टाइम मैगी भी बना रहे हो, कोई हो सकता है कोई न्यूज़पेपर तो खैर आजकल नहीं आ रहा, आपने व्हाट्सएप पे खेल रहे हो सकता है अपने बच्चे को घुमा रहे हो,
क्योंकि उनको एक्टिव रहना है यहाँ पे दिखाने के लिए अपना नंबर, तो नंबर तो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आप में से कुछ कल इसका रिकॉर्ड वर्जन मांगेंगे, कुछ इसकी पीपीटीज मांगेंगे, कुछ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, कुछ आज करेंगे, कुछ हफ्ते के बाद करेंगे, कुछ इतना से मेरा नंबर मांगेंगे। व्हाई दिस? Because it is the all students can learn and succeed, but not on the same day and in the same way. Successful learning promotes even more successful learning. Institution control the conditions that directly affect successful learning in institution. So the management of the institutes must feel and execute their responsibilities. तो हमें honestly, मैं इस टाइम लेक्चर देते हुए ये सोच रहा हूँ कि मुझे 60 नहीं, मुझे 6 लाख सुन रहे हैं, और मेरी एक एक शब्द की जो इस टाइम गरिमा है, महिमा है, उन तक पहुंचनी चाहिए, because they are giving their time to me, they are giving their valuable time to me. So that kind of the principle we have to go for the OBE. The SWOT analysis is most important part. I'll directly take to the SWOT analysis. हर एक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ होती है, हर एक डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ होती है, हर एक फैकल्टी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। आई रिपीट, इंस्टीट्यूशन के सारी डिग्रीज इक्वली गुड नहीं होती, गुड इन द सेंस पॉपुलर नहीं होती। आज भी अगर हमारे बच्चे का जेईई एडवांस में फर्स्ट रैंक आता है, अगर बच्चे ने कहा कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, तो आप आईआईटी दिल्ली नहीं लेंगे, शायद आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। बच्चे ने कहा मुझे इलेक्ट्रिकल लेनी, तो शायद आप आईआईटी दिल्ली लेना चाहेंगे, आईआईटी कानपुर नहीं लेंगे। इसका कारण क्या हुआ? क्या आईआईटीज में अंतर है क्या? नहीं, आईआईटीज में अंतर नहीं है, आईआईटीज ने अपना ब्रांड बना दिया है। Every IITs and NITs are known for the best branches. Similarly, JCRC must be having 2-3 departments very strong. Maybe आपकी सिविल ज्यादा अच्छी हो, maybe आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो कि पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट्स ना भर रही हो, लेकिन JCRC की भर रही हो। ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके लिए आपको प्राउड फील होता है। लेकिन आपकी कुछ वीकनेस भी तो होगी ना। व्हाट इज दैट वीकनेस? किसी डिपार्टमेंट में आपको शायद प्रोफेसर्स नहीं मिल पाए, और मे बी द प्रोफेसर्स आर देयर, दे कुड नॉट डेवलप द गुड लैब्स एंड वी कुड नॉट क्रिएट इम्पैक्ट। तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल रही है। You are getting so many research papers to be get published. You are getting so many research proposals to be applied for AICT and UGC CSIR to get the labs established through mod drops through RPS. और आपको थ्रेट्स भी तो हैं। अरे यहाँ पर इतना प्रेशर है काम का, मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ के नई यूनिवर्सिटी बनी है बगल में, वहां चला जाता हूँ, मुझे सैलरी ज्यादा मिल रही है। ये यूनिवर्सिटी को थ्रेट्स रहते हैं, फैकल्टी को थ्रेट क्या रहता है? मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मुझे ना निकाल दें। इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली इन कंट्री, नॉट ओनली इन जयपुर, नॉट ओनली इन योर यूनिवर्सिटी। हमें ये एनालिसिस कर लेना है, हमारी स्ट्रेंथ को बड़ा कर देना है। स्ट्रेंथ शेडो डाउन करे हमारी वीकनेस को, हमारी अपॉर्चुनिटीज हमारी थ्रेट्स को शेडो डाउन करें। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करता रहूंगा तो मुझे कोई थ्रेट दे ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा कर लिया, टुडे डॉक्टर मन्ना प्रेजेंट इज नॉट अ एआईसीटी डायरेक्टर, व्हाई यू आर लिसनिंग मी? आई एम अ सिंपल प्रोफेसर इन वन ऑफ द government institution. Of course it's a national institution, but why you're listening me? Because you could feel that some particular discussion, some particular topic, some particular expertise can be given by Dr. Manna. That's why you're listening, although you are professors. So my strength given my weakness is low. मैं weak भी हो सकता हूँ, बहुत हो सकता है कि मैं basically I'm from electrical domain, I may not teach a machines as good as you are teaching in your department. So I made my strengths as a big umbrella. Under that, my weaknesses has been shadowed down. So this is a SWOT analysis which we have to do it. Now I'll come to the sample for the outcome with the vision and mission. देख लीजिए, मैंने okay, someone all sudden pop up. Anyhow, some mic got unmuted. They will mute it again. So sample outcomes, vision and mission. And yes, Chitra, you can come intervene anytime in between by unmute your mic to stop me or to hold me where you want to be. Otherwise, I will be keep continuing till my session end. After that, we'll take a question answers. So it's okay, Chitra, sir. You can. Yes, sir. You can continue. Oh, that's good. That's good. Thank you very much. I just wanted to have this. पता चला कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं No, पा sir. रहा, Everyone is listening carefully. I'm watching their faces. Everyone is listening carefully. Oh, great. Because I'm not watching anyone. I'm just looking my screen only. Okay. So vision of the civil department. क्या दिया है? मैं example दे रहा हूँ. To be a premier technical department with teachings, research and consultancy that serves the economy and strives continuously for excellence in education and research. तो क्या मिशन है आपके डिपार्टमेंट का? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. बड़ा कॉमन सा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेनी टाइम्स यू विल ओपन द डिफरेंट वेबसाइट ऑफ दिस कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग अमेटी, इंक्लूडिंग बीएमएल मंजाल, इंक्लूडिंग आईआईटी दिल्ली एंड इंक्लूडिंग एनआईटी. मोर और लेस द सेम इंग्लिश, द सिनोनिम्स आर चेंज. तो हमें भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है. हमारा मिशन भी वैसा ही होगा, हमारा विजन भी कुल मिला के वैसा होगा. देखना ये है कि जब हम विजन और मिशन बना रहे हैं, उसमें हमारी जयपुर की खुशबू आनी चाहिए, राजस्थान की खुशबू आनी चाहिए, फिर इंडिया की खुशबू आनी चाहिए. यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सिटी,
then for your district, then for your state, then for your nation. अगर वो खुशबू नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कट एंड पेस्ट किया है, आपने कॉपी एंड पेस्ट किया है, जो बहुत सारी देश की पीएचडीज में हो रहा है। कम से कम मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि डिपार्टमेंट के विजन और मिशन में कट एंड पेस्ट ना करें। कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट डालें जिसमें आपका आर्ट एंड क्राफ्ट, आपका बेशक व्यंजन ही क्यों ना हो, लेकिन वो आना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। कैसे मैप किया? हमने पीओ बनाया इसका, डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि ये किसका बनाया मैंने? पढ़ते ही आपको समझ आ गया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे बताना ही नहीं पड़ा। आल्दो मैंने पहले लिया था सिविल, अब मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मैंने पीईओ 2 पढ़ा, डेवलप एबिलिटी डिजाइन एंड डेवलप द इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेटिव सिस्टम्स, कोई भी लगा सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी लगा सकता है, मैकेनिकल वाला भी लगा सकता है, सिविल वाला भी लगा सकता है। चलिए पीओ 3 पढ़ते हैं। डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एथिक्स, लीडरशिप, सक्सेसफुल करियर। किसको नहीं चाहिए? फार्मेसी वाले को भी चाहिए। एथिक्स किसको नहीं चाहिए? मेडिकल वाले को भी चाहिए, लॉ वाले को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये इतने पीईओ होते हैं। अगर आप पहले पीओ में अपने डिपार्टमेंट का फ्लेवर देके बाकी 2 पीओ एक जेनरिक भी बना देंगे ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इस तरह से आप अपने पीओस बना सकते हैं। क्यों मैप कैसे करेंगे? देखिए उसके राइट हैंड साइड पे मैप करना है आपको। अगर आपका पीईओ पीओ के साथ मैप नहीं हो रहा, देन देयर इज नो यूज। और अगर आपका सीओ भी पीओ के साथ मैप नहीं हो रहा, तो फिर तो एससीआर कभी बन ही नहीं सकती, आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो ही नहीं सकती। तो द कम्युनिकेशन का हमारा जो 10 पीओ था, आपकी पहली स्लाइड्स आपके पास है, आपने देखी होंगी, ये सीधा मैच कर रहा है उसके साथ। क्योंकि हमने कम्युनिकेशन पार्ट लेके आना है, हमें एथिक्स लेके आना है। अब सीईओ से बात करते हैं। एक 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऑलमोस्ट कॉमन होता है, बहुत सारी डिग्रीज में पढ़ाया जाता है। इसमें इसके 4 सीओ बना दिया हमने। क्या लिखा? एक्सप्लेन द एप्लीकेबल सोर्स, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद इन द पीरियड ऑफ इंजीनियरिंग डोमेन। फार्मेसी वाला यहाँ पे फार्मेसी डोमेन लिख देगा, लॉ वाला यहाँ पे लॉ डोमेन लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स इक्वली गुड। क्यों? उसका सीओ उसके हिसाब से बनना चाहिए। सेकंड हमारा सीओ बन गया अप्लाई द लेटेस्ट मेथोडोलॉजी, फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, एवरीबॉडी कैन। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप जब ये चारों सीओज लिखेंगे तो आप किसी पीओ के साथ, आई गो बैक, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये चारों सीओज को, अब मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। आप, मैं इस साइड पे रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए, सिर्फ आप अपनी मंथन कीजिए। मैंने आपको पीओ 1 से लेके पीओ 12 पढ़ के सुनाए थे। आप कोशिश करेंगे जोड़ने की, इमीडिएटली आप जोड़ पाएंगे कि मेरा सीओ 1 आपके किसी ना किसी पीओ के साथ जुड़ रहा है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहला वाला मैं आपके लिए कर देता हूँ। एक्सप्लेन द एप्लीकेबल सोर्स, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद इन द पीओ ऑफ इंजीनियरिंग डोमेन। मेरा पीओ 1 क्या था? मुझे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप करना था बच्चे में। लो मैच कर गया ये तो। मेरा पीओ 2 क्या था? पीओ 2 था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके मेरा बच्चा। तो ये तो उस पे सीधा लग रहा है भाई। अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम निकालूंगा, मुझे अभी भी याद है जब हम एक क्लास में काम करते थे 3री या 4थी कक्षा में, जिसका पहले सवाल सॉल्व होता था, भले उसने बगल वाले से नकल की थी, लेकिन उसकी आगे कैलकुलेशन मैंने जल्दी कर ली। मैं रास्ते में कई बार गिर जाता था बेंच से उठते हुए, लेकिन टीचर के पास अपनी कॉपी पहुंचाने की चेष्टा करता था कि मैम मैंने पहले किया, मैम आई एम अ फर्स्ट। घर में 3 बच्चों को दूध बांटा जाता था पीने के लिए, भले एक ने दूसरे के गिलास में थोड़ा सा दूध डाल दिया और फटाफट अपने मुंह को लगा के मामा आई एम अ फर्स्ट। ये क्या था? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव गेन्ड बिफोर द अदर्स। ये क्या होता है? मोटिवेशन भी होता है। इसको हम कई बार ये भी कहते हैं कि हम रेस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? हम यहाँ पर पीओ 2 को ये बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं, और जब हम सोल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये मेरी है, मैंने किया, पहले मैंने करके दिखाया था। क्या? कॉपीराइट। क्या मैं मांग रहा हूँ यहाँ पे? मैं मांग रहा हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद इन द पीओ ऑफ माई इंजीनियरिंग डोमेन एंड व्हाट फ्रेमवर्क आई कुड डेवलप। सो इफ यू विल सी फॉर हाफ एन आवर, आज अगर सभी फैकल्टी जो सब्जेक्ट इस सेमेस्टर पढ़ा रही है, आजकल तो आप घर में फ्री हैं, आपके पास आपका कोर्स भी होगा, अगर आप अपने कोर्स आउटकम को मैप करने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड द 3 कैटेगरीज: स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक, SMW। ये मैप करना होता है। मैं आपको सैंपल शीट दिखाऊंगा अगर मेरे पास समय रहेगा, तो ये आपको मैप करना, और शायद आपने किया भी होगा। जिन्होंने एनबीए करवा रखी है उन्होंने ये पक्का किया होगा। कईयों ने 0 1 2 3 यूज किया हुआ है, कईयों ने SMW एंड N फॉर नॉट रिलेवेंट, जो कि हम नहीं यूज करते हैं। हमें 1 2 3 में रहना होता है, या आप 0 लगा सकते हैं, या SMW में रहना होता है, इन दैट वे। तो ये आप बहुत अच्छे से मैप कर सकते। कोई भी अगर ऐसा कोर्स जिसमें कम से कम 4 या 5 पीओज स्ट्रॉन्ग या मीडियम नहीं आ रहे, उस कोर्स को हटा दीजिए। इट इज नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ करिकुलम, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओबी। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा कि आपका कोई भी ऐसा कोर्स हो
जिसमें आपके PO1 से लेके PO12 तक के 4 POs मिनिमम आप टच ना करें। टच इन द केस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक और मीडियम। ये डोमेन्स हैं हमारे लर्निंग के। मैं अभी आपको स्कूल लेवल की एजुकेशन नहीं देने वाला हूँ, एंड यू ऑल आर द प्रोफेसर मोर सीनियर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू बी ऐड ओवर हियर, these are the domains of the learning: cognitive, psychomotor, interactive, and affective. So I request someone to please unmute your mic, though have a switch on their mic. So इसमें आपको ये बताना है चारों डोमेन में कि नॉलेज रिलेटेड मेंटल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस क्या हो सकती हैं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू द माउथ एंड बॉडी, जैसे कम्युनिकेट करना है। मैं आपके सामने बैठा जरूर स्क्रीन पे, अगर मैं अपनी वीडियो को बंद करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता या बताने की कोशिश करता, शायद आपको इतना इफेक्ट नहीं आता। अभी आप पैरेलली मुझे देख पा रहे हैं, आपको पता है कि ये बोलने वाला कौन है पीछे। नहीं तो कईयों की उत्सुकता ये रहती, यार देखने में कैसे होगा, मैंने कभी डॉक्टर मन्ना को देखा नहीं, सुना हमारे कैंपस में आए थे तो सारे बच्चे थे वहाँ पे, चेयरमैन एआईसीटी को लेके आए थे, बहुत खुश हुए थे। अर्पित जी, उनके पिताजी भी बैठे थे, उनके बड़े भाई भी बैठे थे। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी, अर्पित जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये सब क्यूरियोसिटी है, लेकिन देखा नहीं हुआ डॉक्टर मन्ना को, क्योंकि डॉक्टर मन्ना को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। तो अगर वो क्यूरियोसिटी अगर हमने बरकरार रखी तो बच्चे की लर्निंग टूल खत्म हो जाएगा। उसको पहले दिमाग में ये रहेगा, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ ये कौन है। पता चला कि उसने सुना तो कुछ नहीं, सिर्फ शक्ल देखने के चक्कर में रह गया। सो वी हैव टू बी हैव द वेरी इफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव सेशन का मतलब ये होता है, टीचर भली भांति अपने लर्नर के साथ रूबरू हो, टीचर और लर्नर को एक दूसरों की क्वालिटीज, इवन स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए। हम हमेशा बच्चे की ये सॉट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कभी अपनी बच्चे के द्वारा नहीं करवाते हैं। मैं क्लास में बच्चों को पहले बताना पसंद करता हूँ कि मैं कहाँ पर अपने आप को वीक महसूस करता हूँ। क्या मैं अच्छी हैंड राइटिंग से लिख पाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, बोल देता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ। क्या मैं हैंड राइटिंग नोट्स दूंगा कि नहीं दूंगा, मैं पीपीटीज अपनी दूंगा कि स्लाइड शेयर से डाउनलोड करके दूंगा, मैं स्वयं से पढ़ाना पसंद करूंगा कि मैं खुद के अपने नोट्स पढ़ाना पसंद करूंगा। मुझे बच्चे को पहले 3 दिन में इंट्रोडक्शन देनी होती है, इंडक्शन करना होता है। तो बच्चे का मेरे साथ एक ऐसा संबंध बन जाता है कि सर ने अपने आप को खुली किताब के लिए हमारे सामने रख दिया। इसलिए बेझिझक हम भी सर को जाके बोल सकते हैं कि सर कल मैं क्लास नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और बाकी क्लास भी बंक करने वाली है कल क्लास। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आप क्लास बंक करना, लेकिन गूगल क्लासरूम पे जाके मेरी असाइनमेंट कर देना। तो आज अगर मैंने बच्चे को अलाउ किया, तो कल ये भी कहूंगा कि बेटा कल सैटरडे को मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, मेरा मन कर रहा है पढ़ाने को, तो कहेंगे सर हम जरूर आएंगे। क्यों? दिस इज द रिलेशन, द बॉन्डिंग वी हैव टू क्रिएट बिटवीन द लर्नर एंड टीचर। इसके कुछ सैंपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो उसको आपको सैंपल्स के बेस पे ये टीचिंग लर्निंग करनी होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ SAR, that's why I'm showing, otherwise I not supposed to show this, because teaching learning criteria is a part of SAR and we have to show this domain। आपको बताना पड़ेगा अपनी समरीज में, हर टीचर को अपनी टीचिंग पैडागोगी के ऊपर 100 और 150 शब्द लिखने पड़ेंगे कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट दे हैव टू शो। सो नाउ आई विल कम टू द जनरल मीनिंग ऑफ दिस प्री क्वालिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट। जिस इंस्टीट्यूशन का जो डिपार्टमेंट एनबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, 3 साल, पिछले 3 साल का उसका जो इनटेक है वो मिनिमम 50% से ज्यादा होना चाहिए एज पर द सैंक्शन सीट्स बाय AICTE। मान लीजिए आपकी 60-60 की 3 साल में 60-60 की इनटेक थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, लेकिन बच्चे आपके एवरेज वो 30 से कम आए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनबीए। दिस इज द वन थिंग। सेकंड प्री क्वालिफायर क्या होता है हमारा? SFR, दैट इज अ स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो एज पर AICTE नॉर्म्स। उनको पढ़ाने के लिए एज पर योर सैंक्शन शीट्स ऑफ AICTE, अगर आपकी फैकल्टी की रेशियो कम है तो आप फिर भी प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे एनबीए के लिए, आप SAR पर नहीं जा सकते। आपका 20% फीस भरा रह जाएगा, लेकिन 80% फीस जमा नहीं होगा एनबीए के लिए, बिकॉज योर SFR इज नॉट कंप्लीट। एंड द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स you must have the 2 batches passed out prior to apply for NBA for that department for which you are looking for the NBA accreditation. So these are the pre-qualifiers I just discussed over here. इसके कुछ parameters हैं. I will share these slides and this recording is also going to be there, so you can look it up. So self assessment report के बारे में मैंने बहुत बात की है। Annexes आएंगे, surveys आएंगे, annual compliance आएंगी। ये बहुत बड़ा एक वो है, इसके लिए अगर हम पूरे दिन की एक वर्कशॉप करेंगे तो मैं ज्यादा बता पाऊंगा कि उसमें क्या क्या एनेक्सेस लगते हैं और कैसे इसको करते हैं, बट विल सी इन द फ्यूचर टाइम व्हेन वी कैन डू दिस ऑल दिस। SCR के पार्ट इसके ऊपर वो डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, ये जरूर बताना चाहूंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स एट द एंड। नेवर गिव रॉन्ग डाटा रिलेटेड टू फैकल्टी, लैब इक्विपमेंट्स, रिसर्च, प्लेसमेंट। क्यों? आप हर साल पोर्टल पे AICTE के डाटा भर रहे होते हैं,
वो डाटा हमारा सीधा माइग्रेट हो जाता है एनबीए के पोर्टल पे द मोमेंट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द एनबीए आफ्टर सबमिटिंग एससीआर वी डू गिव द कंपैरिजन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो आप ऐसा कुछ भी मैनिपुलेट ना करें। अगर मैनिपुलेट करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल। एचओडी हिमसेल्फ और हरसेल्फ शुड गिव द डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है कि एचओडी को लगता है कि आई एम वेरी सीनियर और मैं कंटिन्यूसली 1 घंटे की प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, तो वो अपने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, कमांड अच्छी है, तुम दे दो। लेकिन नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग दैट प्रेजेंटेशन वो चीजें जो एक एचओडी, जो एक घर की माँ बता सकती है, शायद वो कोई नहीं बता सकता। तो वो क्या बता सकता है, वो बीच में कुछ एग्जांपल्स दे देता है, बीच में कुछ एडिटिव्स दे देता है, वो प्रेजेंटेशन में शायद स्लाइड में भी नहीं होते हैं। हमें वो चीज चाहिए होती है और वो एचओडी ही कर सकता है, क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट एंड ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ दैट फैमिली। सो एचओडी को ही प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। वी ऑलवेज रिकमेंड दिस। डोंट कीप एन एक्सपायर्ड मेडिसिन इन योर हेल्थ सेंटर, एनी सॉल्ट्स एंड केमिकल्स इन योर लैब। आपका फायर सिस्टम सेफ्टी का एएमसी प्रॉपर होना चाहिए, आपकी लिफ्ट की एएमसी होनी चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां जाकर हम 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, आपका एससीआर भरा का भरा रह जाता है। यू विल नॉट गेट एनबी एक्रेडिटेशन, क्योंकि आपके हेल्थ सिस्टम में आपने बोला था कि एम्बुलेंस 24/7 है। पता चला कि एम्बुलेंस का ड्राइवर कह रहा है, सर मुझे 3 दिन के लिए हायर किया कि यहाँ लाके गाड़ी खड़ी करनी है, मैंने 3 दिन से गाड़ी खड़ी की है। तो ड्राइवर को तो आपने एक्सपर्ट ही नहीं किया। सो ड्राइवर डजंट नो अबाउट दिस। सो एनी हाउ, किसी का कैमरा ऑन और छोटा सा बच्चा पीछे से आके बहुत अच्छे से इशारे कर रहा है, अच्छी बात है, इट्स गुड, वी आर एंजॉयिंग इट। द लिफ्ट एएमसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड। सो नेवर गिव फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन और रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल नेशनल। होता क्या है कि हम कई बार पीपीटी में बहुत कुछ डाल देते हैं, हमारे बच्चे वहां गए थे, हमारे बच्चे हैकाथॉन में गए, उनको फर्स्ट प्राइज मिला, हमने यहाँ पे हैकाथॉन करवाया। जेईसी के लिए तो ये सच्ची है, जेईसी ने हैकाथॉन करवाया भी और जेईसी आरसी के बच्चों को हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज आया भी। मुझे याद है क्योंकि सर्टिफिकेट मेरे हाथ से दिया गया था। But many institutions simply they do fake. They doesn't know that digital footprints can never be deleted. With a single enter or a single click, we will get to know whole data from anywhere from this world, whether these students were participated, whether this institution participated, whether this faculty participated or not. तो कुछ भी ऐसा फेक देने की कोशिश मत कीजिए जिसमें आपका पता चला एक फेक के कारण आपका इमेज खत्म। Their mindset got changed. At the end, the chairman say कि इनको 3 साल की एनबी एक्रेडिटेशन दे दो, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये चीजों से आप बचें। नेवर डू एनी टेम्परिंग इन लैब हेल्थ रजिस्टर। पता चला कि एक ऐसा इक्विपमेंट है, आपके यहाँ पे एक फैकल्टी ने मंगवाया था पीएचडी करते समय, उसकी पीएचडी होगी, वो आपका इंस्टीट्यूट छोड़ के चला भी गया और वो इक्विपमेंट के ऊपर चद्दर डाली हुई है। लेकिन जब एनबीए की आ रही है तो आपको शो करना कि इस इक्विपमेंट से बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो तो हो नहीं रहा था, बिकॉज दैट इक्विपमेंट वाज नॉट मेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट फॉर द बीटेक लेवल, इट वाज द पीएचडी। उसने अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ऐसी गलती मत करें कि आप वहां पे हेल्थ रजिस्टर में शो करें कि ये इक्विपमेंट लास्ट वीक यूज किया गया था। अगर आपके टेक्नीशियन को भी नहीं पता कि इसको कैसे ऑन करते हैं, यू विल बी इन ट्रबल। और जब स्टूडेंट्स को हमने बुला लिया रैंडमली, बेटा आपने इस पे कभी काम किया है, वो कहेगा सर ये तो देखा ही पहली बार है, ये तो अलमारी में पड़ा होता था। तो आप उसमें फंस जाएंगे। नेवर डू आर्गुमेंट्स इन सच केसेस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पता चला कि मैंने कहा कि मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ा था, समहाउ मेरा सर्टिफिकेट खो गया। अगर तो मेरे पास डॉक्यूमेंट रिक्रिएट हो सकता है थ्रू वेबसाइट, तो मुझे वहां पे दिखाने में कोई हिचक नहीं है। जिस चीज के कागज घर में छूट के उस दिन फैकल्टी नहीं लेके आई है, कोर्स फाइल कंप्लीट नहीं है, आर्गुमेंट ना करें। आप एक्सक्यूज कह दें, सॉरी कह दें, दे विल लाइक इट, बट नेवर गो फॉर द आर्गुमेंट्स। अवॉइड एनी न्यू रिक्रूटमेंट। पता चला आपने एनबीए की टीम से पहले ही सफाई कर्मचारी डबल कर दिए, जितने चाहिए थे उतने थे नहीं, अब आपने डबल कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड भी बढ़ा दिया, आप फंस जाओगे, बड़ी बुरी तरह से फंसोगे। हम टहलते टहलते उनसे ये पूछते हैं कि आप यहाँ कितनी देर से काम कर रहे हैं, तो वो सच सच बोल देता है कि मैं परसों से आया हूँ और मुझे 1 हफ्ते के लिए हायर किया गया है, मुझे 1 हफ्ते का सिर्फ 1000 रुपया देने वाले हैं। हमारे पास ये रिकॉर्डिंग सफिशिएंट होती है ये बताने के लिए कि आपने एसएआर में झूठ बोला था। हम सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से जाके बात करते हैं, हम सबसे पहले अपने गर्ल्स के बॉयज के जो टॉयलेट्स यूज होते हैं अपने एकेडमिक एरिया में, उनको चेक करते हैं कि आपने कितना अच्छा सैनिटेशन सिस्टम रखा है, कितना अच्छा हाइजीन रखा है। तो ऐसी चीजों से बचें। अवॉइड अनरियलिस्टिक एंड लेंथी मिशन स्टेटमेंट। आपको मिशन को जस्टिफाई करना, पहले प्रॉब्लम आएगी डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन के विजन को डिस्क्राइब करना और उसके मिशन को डिस्क्राइब करने में कई बार आधा घंटा हमारा डिस्कशन पे लग जाता है। हम वही सेटिस्फाइड नहीं होते तो बाकी एसएआर धरी की धरी रह जाती है। आपका मिशन स्टेटमेंट इतना क्लियर होना चाहिए और आपको इतना क्लियर होना चाहिए जो वहां पे बताने वाला है कि उसके अंदर से आवाज आ रही है। तो पहले आप फैकल्टी अपनी चिंतन मंथन करके मिशन खुद बनाओ,
उसके बाद कंप्यूटर्स पे जाकर नेट से ढूंढो कि दूसरों ने क्या लिखा है, आप अपनी पहले लैंग्वेज बनाओ. नेवर हाईलाइट एनी फोटोज in any management oblique director office that reflects to any political affiliation, caste, religion or influence unless it is a minority. मान लीजिए आपका क्रिश्चियन मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो आपके वहां पे अगर क्रॉस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है. आपके अंदर जीसस की तस्वीर भी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, जीसस गॉड है और आपका मिनोरिटी. लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूशन मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और आप पर्टिकुलर किसी एक धर्म की ज्यादा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये लगेगा कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स शायद थोड़ा सा अपने आप को भयभीत महसूस करते होंगे, या यहाँ पर ये पॉलिटिकल पर्सन की तस्वीरें लगी हैं तो ये पॉलिटिकल पर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा. पता चला कि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या नहीं है. तो कई बार हमें लगता है कि हम इस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट के किसी के साथ तस्वीर दिखा देंगे तो हमें एनबीए मिल जाएगी. ऐसी गलती मत कीजिए. पता चला कि आपने वहाँ पे चेयरमैन एआईसीटी के साथ जो तस्वीर खींची हुई है उसको बड़ा करके लगा दिया ये दिखाने के लिए कि प्रेजेंट चेयरमैन हमारे बहुत अच्छे नजदीकी हैं, और आपको नहीं पता कि उस प्रेजेंट चेयरमैन ने जो आपके पास एक्सपर्ट आया शायद उस टाइम किसी को उसको कभी चेयरमैन ने डांटा भी हो कि किसी इंस्टीट्यूशन में उसने गलत स्टेटमेंट भी दी हो. तो वो तो अंदर से हमारे चेयरमैन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बंदे का माइंडसेट आपको नहीं पता कि वो कितना पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो आप ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम ना खुद के लिए क्रिएट करें. आप अपने इंस्टीट्यूशन के एम्बियंस को बिल्कुल न्यूट्रल रखें, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलीजन रिफ्लेक्शन, एनी काइंड ऑफ कास्ट रिफ्लेक्शन, एनी ऑफ क्रीड रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपके पास बच्चे सभी धर्मों के पढ़ने आते हैं और इंस्टीट्यूशन का कोई धर्म नहीं होता. इंस्टीट्यूशन का एक ही धर्म होता है, टू गिव द एजुकेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इंडिया. So that's about my today's discussion. Now I'm open for question and answer. Thank you very much.